Saviors at sea, we are Yatru, Yatru. We have one rule. Family always comes first. And with our family, और तो जो है ना और बुझ जाएंगे ना ऑटोमेटिक These fast interceptor crabs, with their agility and speed, in water with the help of its coronals. Upon receiving the distress alert, the shore authority informs the nearest search and rescue unit of the Indian Coast Guard. The district headquarters, then, at the instructions of the district commander, immediately tasks offshore patrol vessels for search and rescue operations. Ladies and gentlemen, as we can see, there are two survivors in your front. સૌથી લાંબો સમુદ્ર કિનારો સૌરાષ્ટ્રમાં છે અને સૌરાષ્ટ્રના સમુદ્ર કિનારા ઉપર પોરબંદર એક ખૂબ જ અગત્યનું બંદર છે. અહીંયા માત્ર ડિફેન્સને લગતી જ કામગીરી નહીં, અહીંયા આપણી પાસે કમર્શિયલ જેટી પણ છે, મર્ચન્ટ જેટી છે, તો જેના ઉપરથી એક્સપોર્ટ પણ બહુ જ મોટા પ્રમાણમાં થાય છે. એટલે વ્યાપારની દૃષ્ટિએ અને સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ પોરબંદરનું જે બંદર છે ખૂબ જ અગત્યનું છે અને એટલા માટે જેને ધ્યાનમાં રાખીને પોરબંદરમાં આપણે કોસ્ટગાર્ડનું હેડક્વાર્ટર આપવામાં આવેલું છે. અહીંયા ખૂબ જ રેગ્યુલરલી કોસ્ટગાર્ડનું જે ડોર્નિયર જે છે એના દ્વારા અને અહીંના જે શિપ્સ છે એના દ્વારા સમુદ્રની અંદર ઘણા પ્રકારની એક્ટિવિટી કરવામાં આવે છે. અત્યારે જે આપણે ડેમોન્સ્ટ્રેશન જોયું એ મોટે ભાગે સલામતી માટે અને બીજું ફિશરમેનને બચાવવા માટેનો ડેમો જોયો, પણ એ સિવાય પર્યાવરણની રક્ષા માટેનું કામ પણ ખૂબ જ મોટું કામ કોસ્ટગાર્ડ કરે છે. એ ઉપરાંત અહીંની જે અમારી ફિશરમેન કમ્યુનિટી છે તેની અંદર અવેરનેસ અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે ખાસ કરીને અવેરનેસ, તો એ એજ્યુકેશનનું કામ પણ કોસ્ટગાર્ડ કરે છે. I am DIG SR Patil, Commanding Officer, Indian Coast Guard ship Sajag. Sajag is 105 meters advanced OPV, offshore patrol vessel, which is capable of carrying twin engine helicopters for its operation. The ship is also fitted with advanced technology, navigation and communication equipment, which you can see it in the bridge, and also with weapons and sensors. Sajag, the state-of-the-art ship, is capable of policing the entire maritime zone of India, and the ship is also designed for anti-piracy, anti-smuggling, pollution control and carrying out search and rescue operations in the Indian search and rescue region. For your information, this ship is totally, completely built and manufactured in India, that is Goa Shipyard, and the ship was commissioned by Sri Ajit Doval, Kirti Chakra, National Security Advisor, on 29th May 2021. Other details regarding the ship will be subsequently given by my colleagues and my departmental officers and in charges. Thank you. मेरा नाम कृष्ण कुमार उत्तम सहायक इंजीनियर है. मैं इस जहाज का इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का सबऑर्डिनेट ऑफिसर इंचार्ज हूँ. इस जहाज की इंजीनियरिंग मशीनरी एवं इक्विपमेंट का जिम्मेदार हूँ. इस जहाज की इंजीनियरिंग मशीनरी को 3 भागों में विभाजित किया गया है. पहला मैन इंजन रूम कंपार्टमेंट, दूसरा ऑक्सिलरी मशीनरी कंपार्टमेंट, तीसरा आउटपुट मशीनरी कंपार्टमेंट. हम हमारे जहाज में स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का पालन करते हैं. इस जहाज में 2 मैन इंजन फिटेड हैं, जिसकी प्रत्येक की कैपेसिटी 9100 किलोवाट है. इस जहाज के गियरबॉक्स इंडियन मेक्स हैं, जो कि मेक इन इंडिया के संकल्प को दर्शाते हैं. इस जहाज के 4 मैन डीजल अल्टरनेटर हैं, जिसकी प्रत्येक की कैपेसिटी 450 किलोवाट है. थैंक यू. सबऑर्डिनेट ऑफिसर इंचार्ज हूँ. मैं इस जहाज के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जिम्मेदार हूँ. इस जहाज में 4 मेन डीए लगे हुए हैं
जो कि इंटीग्रेटेड मशीनरी कंट्रोल सिस्टम के द्वारा कनेक्टेड है। इन केस ऑफ कोई भी एक डीए फेलियर हो जाता है तो अल्टरनेट डीए विद इन 7 सेकेंड ऑटोमेटिकली पूरे सप्लाई को जीवित रखता है। इसके अलावा हमारे शिप में एक इमरजेंसी डीए दिया हुआ है, जो कि हमारे शिप में जो इमरजेंसी डीए है वो इन केस ऑफ सारे डीए अगर फेलियर हो गए, मान लीजिए चारों डीए चल रहे हैं वो फेलियर हो गए, तो ऑटोमेटिकली वो भी कनेक्ट हो जाता है विद इन 7 सेकेंड। और हमारे जो मेन इक्विपमेंट है नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, उसको जीवित रखता है। इसके अलावा हमारे शिप में 22 बैटरियाँ दी हुई है जो 180 एच की है, और इन केस ऑफ इमरजेंसी डीए भी फेलियर हो गया तो हम मेन क्रिटिकल इक्विपमेंट जो है उसको जीवित रखते हैं। थैंक यू। पेट्रोल कभी इन्फॉर्म्ड होता है, कभी सरप्राइज वाला होता है। उसके लिए हमारे जो डॉनियर एयरक्राफ्ट है सर्वेलेंस में पूरे EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सर्वेलेंस करती रहती है। उसमें जब भी हमें कोई ऐसा पदार्थ दिखाई देता है जिससे हमें पता चलता है कि प्रदूषण हो सकता है और हमारे जो मरीन लाइफ है उसके लिए थ्रेट हो सकता है, तो हम लोग अपना पोल्यूशन एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। उसको अगर छोड़ दिया जाए तो आपकी जो तटीय एरिया है वहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना है उसको इफेक्ट किया जा सकता है। इसलिए चैलेंजिंग एक तरीके से वो भी चैलेंजिंग टास्क है। गांधीनगर में जो डिफेंस एक्सपो हो रहा है मेक इन इंडिया, उसके अंतर्गत हमने 2 जहाज जो मेक इन इंडिया है सजग और सार्थक डिस्प्ले किया है। उसके साथ हमने एक ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन दर्शाया है। उसमें जो कोस्ट गार्ड सी में जो गतिविधियां करती है उसके एक छोटी सी रूपरेखा हमने दिखाई है। उसमें हमने सर्च एंड रेस्क्यू दिखाया है, पोल्यूशन कंट्रोल दिखाया है, बोर्डिंग ऑपरेशन दिखाया है। ये हमने हार्बर के अंदर एक छोटे टाइम में आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया। जो रेस्क्यू दिखाया गया है, जो जहाज के सी बोट हैं, फास्ट सी बोट होते हैं, उससे रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाया गया है। अपने चार्टर ऑफ ड्यूटीज में शिप्स, एयरक्राफ्ट और इसके अलावा जो हमारे तट के अलॉन्ग जो रेडार सिस्टम स्टैटिक सेंसर्स लगाए हैं 24/7 365 डेज हम लोग सर्वेलेंस करते रहते हैं। उसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत इम्पोर्टेंट ये भूमिका है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टम्स, सबके साथ कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। नेवी के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हर समय रहता है।